S, member of the Human Rights Commission, Dr. Gyaneshwar Muleji, the spokesperson of the government in the Court of Law, Advocate R. Venkataramani ji, Rajesh Gogna ji, my friend Nitin Sharma ji, many legal luminaries and others who have been active in the domain of human rights assembled over here. Thank you for having me here, although to be speaking in front of somebody who is a true legal luminary and someone who is a part of the Human Rights Commission, I think it's not very difficult, it's not very easy, but whatever general understanding I have, let me reflect upon just 2-3 issues. Basically, I believe the C20 has very thoughtfully selected this theme, human rights as human values, because human rights as human values, I mean the recognition of it, the understanding of it, the conviction about it is the way to move towards human duties. Because human rights cannot be thought of in isolation. After all, we are in a social environment where everybody keen on his or her own rights also has its impact on the rights of others. And therefore, I believe unless and until we create this understanding that human rights are fundamentally human values, and if they are human values, they need to be reflected in our behavior. Unfortunately, कई बार ये देखा जाता है कि जिन चीज़ों पर आमतौर पर सहमति होती है, वो चीज़ें जमीन पर उतरती नहीं। सहमति है तो डिबेट क्या करना चाहिए, मगर भैया डिबेट से काम नहीं होगा, उसका रिफ्लेक्शन हमारे जब तक आचरण में नहीं आता, तब तक ह्यूमन राइट ये सेमिनारियन का और इंटरनेशनल सिंपोजिया का और बड़ी-बड़ी किताबें लिखने का ही विषय रह पाएगा. And I believe when we talk about human values, essentially the emphasis is upon how we will be able to ensure that they are reflected in our behavior. जब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इस विषय की ओर देखता हूँ, तो 2 चीजें मुझे लगती है कि इस पूरे विषय के संदर्भ में आकलन में लेना बहुत जरूरी है. एक है जिसको हम कहेंगे weird ideas of superiority and supremacy, which are one of the big obstacles in the path of protection of universal human rights. And the other one is a crass monopolistic approach in any given situation. When the approach is my way or highway, you cannot be talking about anything which is democratic. When the approach is that we are superior to others and we are supreme to all others, I think any talk about human rights becomes meaningless. And therefore, as a solution to these kinds of impediments, and I believe the idea of supremacy, superiority, or any kind of monopolistic approach in any sphere definitely tells us about how we are incapable of empathizing with those who are the most disadvantaged and deprived sections of the society. Economical kind of whatever the benefit that they need to be reaching to them. But human dignity के context में भी जो deprived है, जिनको प्रतिष्ठा नकारी गई है, जिनको सम्मान दिया नहीं जाता और उस दृष्टि से वो डिसएडवांटेज है, उनके बारे में भी जब तक हम एक एम्पैथी की भावना नहीं रखेंगे, मैं मानता हूं कि ये विषय हम ह्यूमन वैल्यूज की दृष्टि से नहीं देख पाएंगे. और एम्पैथी की जब बात आती है तो मुख्य रूप में across the society, all kinds of social groups, every kind of strata of the society, मुख्य रूप में जो वल्नरेबल सेक्शंस है सोसाइटी के, वो है हमारे बच्चे, चिल्ड्रन, महिलाएं, विमेन, एंड ऑफ कोर्स द एल्डरली पीपल.
हमारे वृद्ध लोग जो है वो। तो इन तीनों का प्रारंभ उनके प्रति न्याय करने का या उनके मानव अधिकारों की रक्षा करने का, ये तो घर के चार दीवारी से होता है। समाज में तो ह्यूमन राइट्स की चर्चा हम करेंगे, घर में क्या होगा? तो उसके लिए भी मैं मानता हूं कि एम्पैथी की जरूरत है। मुझे याद आता है आचार्य दादा धर्माधिकारी, ए वेरी वेल नोन सर्वोदय थिंकर, गांधीयन। उन्होंने एक बार वीमेन राइट्स के बारे में और वीमेन और मतलब जेंडर इक्वालिटी के बारे में एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी, अपनी एक छोटी सी किताब में वो उपलब्ध है। दादा धर्माधिकारी ने ये कहा था कि एक जमाना था जब महिला और पुरुष इनके दायित्व, इनके बारे में एक विभाजन था। ये काम महिला के हैं, ये काम पुरुष के हैं। एंड यू नो व्हाट वेर द ट्रेडिशनल वेज ऑफ लुकिंग एट इट, सम काइंड ऑफ ए डिवीजन ऑफ लेबर। मगर होते होते क्या हुआ, जैसे समाज विकसित होता गया, प्रगल्भ होता गया, वैसे महिलाएं हर किसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो गई। आज महिलाएं सेना में है, महिलाएं विमान चलाती हैं, महिलाएं वैज्ञानिक हैं। तो जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाओं ने प्रवेश नहीं किया है और या अपने कर्तृत्व की छाप नहीं छोड़ी है। दादा धर्माधिकारी आगे चलकर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वीमेन हैव एंटर्ड इनटू ऑल दोज अरीनास व्हिच वर कंसिडर्ड एज द ट्रेडिशनल kind of areas dominated by the men. So now it is upon the men also to look into those areas which were traditionally considered as the domains of women alone. And he was referring to every kind of things, from domestic chores to taking care of kids, taking care of the elderly, taking care of the guests. और मैं मानता हूं कि इससे बढ़िया सूत्र नहीं हो सकता जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि सेमिनार में जेंडर इक्वालिटी की भाषा करने वाले अपने घर में क्या व्यवहार करते हैं ये भी तो हम देखते हैं कई बार। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसको जब हम एम्पैथी के धरातल पर लाकर जो न्याय के बारे में एक मानसिकता बनाने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बनाएंगे, तब तक ह्यूमन राइट्स को हम ह्यूमन वैल्यूज की दृष्टि से शायद नहीं देख पाएंगे। और इसलिए ये विषय बहुत ही समसामयिक है, महत्वपूर्ण है कि इसको हम अपने बिहेवियरल पैटर्न में कैसे उतारें और पग पग पर इसका एहसास रखते हुए कि मेरे कारण किसी के मानव अधिकार की अवहेलना तो नहीं हो रही, इसके बारे में कैसे चिंतित रहे। अभी ये कहना तो आसान है, मगर इसके संदर्भ में और भी एक दो विषय मैं मानता हूं कि हमारे सोचने का दायरा बनने चाहिए, क्योंकि वी आर ए सोशल एनिमल, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। और जब हम समाज में रहते हैं तो हमारी सामाजिकता का प्रारंभ स्वाभाविक रूप में हमारी फैमिली से होता है, परिवार से होता है। तो आज जब हम देखते हैं, मतलब एक ओर तो हम इंडिविजुअलिज्म, प्राइवेसी, प्राइवेट स्पेस, इसकी भाषा करते हैं, और जब परिवार में रहते हैं तो स्वाभाविक रूप में इसके ऊपर कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर किसी की इंडिविजुअल चॉइसेस पर, प्राइवेसी पर, प्राइवेट स्पेस पर आज तो आनी है, बिकॉज द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। बहुत अमीर घरों में ये होता है कि स्कूल जाते हुए बच्चे के लिए भी अलग कमरा होता है, और अगर नाना नानी, दादा दादी घर में रह रहे हैं तो उनके लिए भी कोई अलग व्यवस्था होती है। नहीं तो हम देखते हैं कि टेलीविजन पर क्या चलाना, इसके ऊपर भी तो बहुत कश्मकश होती है, और किसी को एक अच्छा लगता है, किसी को दूसरा। तो हुआ क्या कि हर कोई अपने कमरे में अलग टीवी लगाने लगा। अब ये चलिए, जिसको अमीर है अगर उनको अफोर्ड करता है तो वो करे, फिर बाकी विषयों का क्या होगा, एनवायरनमेंट का क्या होगा, ये जो सारी कार्बन एमिशन और बाकी चर्चा हम करते हैं उसका क्या होगा। तो संसाधनों का असीमित उपयोग और संसाधनों को शेयर किए बगैर अपने इंडिविजुअलिज्म को ओवरस्ट्रेच करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं मानता हूं कि किसी न किसी के ह्यूमन राइट्स के ऊपर आंच तो आनी है।
आप अपने बच्चे के या अपने माता पिता के ह्यूमन राइट्स की, उनके इंडिविजुअलिज्म की, उनकी प्राइवेट स्पेस की सुरक्षा कर पाएंगे, मगर समाज में अगर हर कोई इसी पद्धति से अपनी सुरक्षा की और आकांक्षा रखेगा, और रखने में गलत तो कुछ है नहीं, तो केवल आप उपभोग ले सकते हैं, इसलिए अन्य किसी को शायद आप वंचित रखने की दिशा में ले जाएंगे। और इसलिए पुनः एक बार मुझे लगता है कि हमारी ह्यूमन राइट्स के बारे में जो भी चर्चा चलती है, वो जब तक हम ह्यूमन वैल्यूज़ के माध्यम से, ह्यूमन कंडक्ट के से होकर ह्यूमन ड्यूटीज़ की तरफ नहीं ले जाएंगे, तब तक सारे इंटरनेशनल फोराज में और सभी सारे समूहों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, न्यायालयों में भी ह्यूमन राइट्स की जो चर्चा होती है, वो शायद, मैं कोई बहुत जानकार हूँ नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो परिपूर्ण नहीं हो पाएंगी। इफ वी आर रियली कमिटेड टू ह्यूमन राइट्स, आई बिलीव द ओनली वे, as perhaps it's suggested by the title selected for this particular engagement, so working group, unless and until we ensure that human rights via, as I said, human values and human conduct are ultimately taken to human duties, perhaps this discussion cannot be complete. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Sahasrabudin.